Hello everyone, my name is Priyanka Yadav and I am a research scholar. I am so excited to start this course. Let me start by telling a bit about this video. In this video, we will cover all the topic of first chapter of economics subject. So, are you ready? Let's move on to our first slide. So, our first question is, what is economics all about? Before start this presentation, we should know about who is the father of the economics. Adam Smith is known as the father of the economics. The term economics is derived from the Greek word oikos, a house, and nemen, to manage. Thus, word economics was used to mean how the management with the limited funds available in the most economical manner. Economics is the science which study human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. So, economics का मतलब ये होता है कि we have very limited resources and the uses of that resources are alternative. Like we can take the example, I have 10,000 rupees in my pocket, so there's alternative uses of that 10,000. 10,000 is a limited resources. अब उस 10,000 को मैं बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकती हूँ. लाइक मैं 10,000 को इन्वेस्ट कर सकती हूँ, मैं 10,000 को शॉपिंग कर सकती हूँ, मैं 10,000 से अपना फ़ोन खरीद सकती हूँ. तो ये 10,000 जो है वो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, बट जो उसके अल्टरनेटिव यूजेस है वो बहुत सारे हैं. तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है, बट उसका हम यूज इस तरीके से करें, इकोनॉमिक मैनर से करें, जो उसका बेनिफिट है वो मुझे मैक्सिमम मिले. In economics, there are two branches. One is micro, second is macro. Before 1930, इकोनॉमिक सब्जेक्ट को या इकोनॉमिक को सिर्फ एक ही माना जाता था. But in 1933, Roger French coined the word micro and macro to denote the two branches of economic theory. In this slide, we will discuss about the microeconomics and the macroeconomics. Basically, we will discuss about the parts of microeconomics and macroeconomics. In microeconomics, there is product pricing. In the product pricing, there is theory of demand, theory of supply. The second is factor prices. In factor pricing, there is wages, rent, interest, profit. And third is welfare economics. In the macroeconomics, there is theory of income and employment. Second, theory of general price level and inflation. Third, theory of economic growth. And fourth is theory of distribution. So, what is microeconomics? Micro word comes from Greek word, means small. It is the study of behavior of individual decision making units such as consumer, resources, owners and firms. It is known as price theory. Since it's a major subject, matters deal with determination of price of commodities and factors. ओके, सो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्मॉल. जब हम सिर्फ एक इंडिविजुअल को कंसिडर करते हैं, हेयर वी कैन टेक द एग्जांपल, लाइक आप जो है वो इंडिविजुअल है और जो आपकी फैमिली है वो मैक्रो है. जब हम आपको कंसिडर करते हैं, आपकी कंजप्शन को कंसिडर करते हैं, आपकी डिमांड को कंसिडर करते हैं, तो उसे हम माइक्रो बोलते हैं. पर जब हम आपके सारे फैमिली मेंबर्स को ले लें तो उसे मैक्रो बोलते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम तीन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. व्हाट इज प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस. हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल लेवल को कंसिडर करती है रादर देन हम होल सोसाइटी को कंसिडर करें. इसे हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, कितनी डिमांड है, उससे हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, फैक्टर्स के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, लाइक हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक्स पॉलिसी विच इनहेंस प्रोडक्टिव इफिशिएंसी एंड रिजल्ट इन ग्रेटर सोशल वेलफेयर. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमें पॉलिसी बनाने में हेल्प करती है, जिससे कि जिस पॉलिसी से हम
प्रोडक्टिव एफिशिएंसी हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग करेक्ट प्राइस पॉलिसी। ये करेक्ट प्राइस पॉलिसी बनाने में हेल्प करती है गवर्नमेंट को। ओके, इट हेल्प इन एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज बाय द एंटरप्रेन्योर। It help business economics to make conditional prediction and business forecast। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है, जैसे कि आपकी पॉलिसी बनाने में, जैसे कि इकोनॉमिक्स को ये पता चले कि बिजनेस का फोरकास्ट कर सके कि बूम आएगा या रिसेशन आएगा, क्या आएगा, वो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो गवर्नमेंट को हेल्प करती है प्राइस पॉलिसी बनाने में कि कितने प्राइस में क्या उन्हें बेचना है, कितना प्राइस डिटरमाइन करना है। ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये सब कुछ डिसाइड करते हैं। सो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो comes from a Greek word means large. Macroeconomics deal with aggregative economics. It is defined as the study of overall economics phenomena such as problem of full employment, GNP, gross national product, saving, investment, aggregate consumption, aggregate investment, economic growth, etc. It is also known as theory of income and employment. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी सोसाइटी को एक ले लेते हैं, बट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हम इंडिविजुअल को लेते हैं। लाइक हमने एक एग्जांपल लिया था इन द अर्लियर स्लाइड दैट आप जो है वो इंडिविजुअल है, आपकी जो पूरी फैमिली है वो मैक्रो लेवल पर है। वैसे ही अगर एम्प्लॉयमेंट आपसे हुआ है दैट इज माइक्रो, बट जब पूरे लोगों को हम एग्रीगेट करके अनएम्प्लॉयमेंट लेवल या एम्प्लॉयमेंट लेवल निकालते हैं उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंस है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फर्स्ट it gives an overall view of the growing complexities of an economic system. It provides powerful tool to explain the working of the complex economic system. Second, it helps in analyzing the reason for economic fluctuation and provide remedies. जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमें ये बताती है कि जो हमारे इकोनॉमी में है कितना जीएनपी हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, लोगों ने कितना कंजप्शन किया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, इसे हम इस ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पता चलता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें ये पता चलता है कि व्हाई इज देयर अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर इकोनॉमी, व्हाई इज देयर दिस प्रॉब्लम अकर इन आवर इकोनॉमी। सो हमें ये पता चलता है कि हमारी जो इकोनॉमी में है वो फ्लक्चुएशंस क्यों हो रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमें रेमेडीज बताती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं बहुत सारी चीजें हम कंसिडर करते हैं मैक्रो लेवल पर। हम ये देखते हैं कि क्यों मतलब ये सब कुछ हो रहा है हमारी सोसाइटी में। हम सोसाइटी को एक ले लेते हैं, जैसे कि हम इंडिया को एक ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रो। पर जब मैं उस इंडिया में एक एज ए इंडिविजुअल रह रही हूँ, जब मुझे कंसिडर करा जाएगा दैट इज कॉल्ड माइक्रो। ओके, सो व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? It deals with what is or how an economic problem facing a society is actually solved. Robbins held that economics was purely a positive science. Economics should be neutral or silent between ends. That is, there should be no desire to learn about ethics of economics decision. Example, India is an overpopulated country. A fall in the price of goods leads to a rise in quantity demand. Prices have been rising in India. जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो फैक्ट्स और फिगर पे होती है, वो फैक्ट्स और फिगर पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैं ये बोलती हूँ इंडिया इज अ वेरी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, तो ये फैक्ट और फिगर पे है कि यस इंडिया जो है वो ओवर पॉपुलेटेड है। जैसे कि हम फैक्ट और फिगर को देख सकते हैं कि चाइना के बाद जो है इंडिया सेकेंड पोजिशन पे है, तो यस इंडिया इज अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन टेक द सेकेंड एग्जाम्पल कि हमारा जब प्राइस फॉल होता है किसी भी कमोडिटी का तो क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है हम जस्टिफाई कर सकते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड से। ठीक है, अब हम ये बोल सकते हैं प्राइस हैव बीन राइजिंग इन इंडिया, तो ये भी फैक्ट और फिगर्स को हम देख के कर सकते हैं जस्टिफाई कि हाँ प्राइस जो है वो राइज हो रहा है इंडिया में। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो फैक्ट्स और फिगर पे डिपेंड करती है। ठीक है, और जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स है।
Third, these statements are related with what is, what was and what will be. जो ये जो स्टेटमेंट है ये बताती है क्या है, क्या था और क्या होगा। जैसे कि फैक्ट्स और फिगर्स पे है, मैंने ये बोला कि जो प्राइस है वो बढ़ रहा है इंडिया में, तो ये जो फैक्ट्स है, हम ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली है ये मैं फैक्ट्स और फिगर से कर सकती हूँ जस्टिफाई। अब मैं बोलूँ कि जो प्राइस था वो 2010 में बहुत कम था, ये भी फैक्ट्स और फिगर से मैं जस्टिफाई कर सकती हूँ। या फिर मैं ये बोलूँ जो प्राइस है 2022 में इंक्रीज होंगे, वो मैं फैक्ट्स और फिगर से एस्टिमेट लगा सकती हूँ कि हाँ भाई हो सकते हैं, प्राइस इंक्रीज हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। So, what is normative economics? It deals with what ought to be or how an economic problem should be solved. Alfred Marshall and Piaget have considered the normative aspect of economics. Example, government should guarantee a minimum wages for every worker. India should not take loan from foreign countries. जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो हमें ये बताती है कि ये हमें नहीं करना चाहिए और ये हमें करना चाहिए। ये इससे, इस डिसीजन से प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अगर हम ये डिसीजन ले तो हमें ये डिसीजन लेना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट को मिनिमम वेजेस जो है वर्कर के लिए कंसिडर या डिसाइड करने चाहिए। तो ये फैक्ट्स और फिगर्स पे डिपेंड नहीं करती है, ये इकोनॉमिक्स के ओपिनियन पे डिपेंड करती है। जो इकोनॉमिक्स है वो ये बोलेगा कि गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना चाहिए जिससे कि उन्हें 2022 में ये फायदा होगा। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कोविड-19 कि अगर हम गवर्नमेंट अगर घर घर में जाके वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेगी तो हमारी जो ये पैंडेमिक सिचुएशन है वो कंट्रोल हो सकती है। तो गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना चाहिए। तो ये हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ले आते हैं कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है और ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, या ये चीज इस सिचुएशन को डील करने के लिए ये डिसीजन या ये स्टेप लेना चाहिए। दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। So our next slide tells about what is positive economics and what is normative economics. Positive economics means it expresses what is kya. It is based on cause and effects of facts. It deals with actual or realistic situation. It can be verified with actual data. In this, value judgment are not given. It is neutral and it deals with how an economic problem is solved. इकोनॉमिक्स ऑफ पॉजिटिव स्कूल्स आर एडम स्मिथ एंड हिज फॉलोअर्स। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये बताती है, ये जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये फैक्ट्स और फिगर्स पे डिपेंड करती है, ना कि जजमेंट पे कि मैं ये सोचती हूँ या इकोनॉमिक्स ये सोचते हैं कि ऐसे करने से ये सिचुएशन ऐसे डील हो जाएगी। ये फैक्ट्स और फिगर्स पे नहीं है, ये ओपिनियन पे डिपेंड करती है। पर जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो ओपिनियन या किसी के जजमेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये एक्चुअल डाटा और ये एक्चुअल फिगर पे डिपेंड करता है। और जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो वेरीफाई करती है एक्चुअल डाटा से, वेरीफाई किया जाता है उसे एक्चुअल डाटा से, और ये डील्स करती है कि कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। नाउ व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? इट एक्सप्रेस व्हाट शुड बी, it based on ethics, it deals with idealistic situation, it cannot be verified with actual data. In this, value judgment are given. It deals with how a problem should be solved. Economics of normative schools are Marshall, Piaget, Hicks and Kaldor. इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये बताती है हमें ये करना चाहिए, ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन करती है, अगर ये सिचुएशन आएगी तो हमें ये करना चाहिए। वो सिचुएशन अभी आई नहीं है, वो किसी एक्चुअल डाटा से वेरीफाई नहीं हुई है, बस ये इकोनॉमिक्स ने एक ओपिनियन बनाया, ये एक जजमेंट बनाया कि अगर हम ये करेंगे तो ये हो सकता है। लाइक हमारे को इकोनॉमिक्स ने या रिसर्च जो रिसर्चर थे उन्होंने ये बताया था कि कोविड-19 आएगा, सेकेंड वेव आएगी, तो हमें ये सब कुछ करना चाहिए जिससे कि हम कोप कर सके, इस सिचुएशन को कंट्रोल में ला सके, तो हमें ये करना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। Thank you so much. I hope you got everything. All your doubts have cleared regarding what is economics, what is macroeconomics, microeconomics, and what is normative economics, positive economics. So, thank you so much. Have a good day.